السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں تیری ستمگری، ابیہ علی کی تحریر۔ وہ 2 دن سے گھر نہیں گیا تھا کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ اس کی محبت جو کہ 4 سال اس کے نام رہی تھی، آج پل میں اس کے چھوٹے بھائی حسنال بخت کے نام ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ذات میں سلجھا ہوا شخص بہت بکھرا ہوا تھا۔ اس بکھرے پن کی وجہ اشنال بخت تھی۔ روشنال بخت کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اشنال بخت اس کے ساتھ ایسا کرے گی، وہ جو اس سے 12 سال چھوٹی تھی۔ اس کا منہ اسے بچہ بچہ کہتے نہیں تھکتا تھا۔ وہ 2 دن پہلے اس کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ اگر اشنال بخت اس کے سامنے ہوتی تو روشنال بخت اس کا حشر کر دیتا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ مسلسل کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا تھا کہ اس کے والدین جو اس کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے، اشنال کی ایک بات کی وجہ سے وہ ساری عزت ریت کا محل ثابت ہوئی تھی۔ بابا کی ایک بات وہ سہ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ بار بار بابا کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ 2 دن سے اس کو کوئی بلا نہیں رہا تھا۔ غصہ جب حد سے سوا ہوا تھا تو گھر کی طرف قدم بڑھائے، کیونکہ 2 دن سے وہ گھر والوں کے طعنے برداشت کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، ڈور لاک لگایا، پھر بیڈ کی طرف بڑھا، لیکن یہ کیا! وہ اس کے بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے غصے کا گراف اور بڑھا تھا۔ اٹھو، میری نیندیں برباد کر کے مزے کر رہی ہو! روشنال بخت نے غصے سے بلینکٹ اتار کر نیچے پھینکا تھا، جس سے اشنال کے کپڑے بے ترتیب ہوئے تھے۔ اٹھو بے غیرت عورت! وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر جو آیا منہ میں بول گیا تھا۔ اشنال اس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ بھائی، آپ یہاں ہو! اٹھ کر ایک دم سے اٹھ کر اس کے گلے لگی تھی۔ اشنال نے اس کی گالی نہیں سنی، اس لیے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ بھائی، آپ تو مجھے جانتے ہیں نا، میں ایسی نہیں ہوں۔ چٹاخ! وہ اسے خود سے علیحدہ کرتا اس کے نازک لب پر تھپڑ رسید کر گیا تھا۔ خبردار بازاری عورت! تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرے روم میں آؤ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے چھوٹی امی نے کہا تھا کہ آئندہ میں اس کمرے میں رہوں گی۔ وہ سہم کر بولی۔ تو اپنی جگہ پر سو! یہاں میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اسے زمین پہ دھکا دیتے ہوئے بولا تھا۔ یہ جگہ ہے تمہاری۔ اشنال نے تو اس کے تیور دیکھ کر سہمی تھی۔ آپ بھی مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میری بات آپ نہیں سنیں گے نا؟ میں تو سمجھی تھی آپ دنیا کے آخری انسان ہوں گے جو میری بات رد نہیں کریں گے۔ ایک اور لفظ نہیں، آج میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ واقعی ایسی لڑکی نہیں ہوں، یہ بات کاش مجھے سمجھ آ جاتی۔ یہ لفظ تو 18 سال کی معصوم لڑکی پہ تازیانہ بن کر لگا تھا۔ بھائی، آپ میری بات تو سنیں۔ بھائی، بغیرت عورت! جو تم نے کیا ہے، آج تمہارا اور میرا نکاح ہوا ہے، پھر معصومیت کا ناٹک کر رہی ہو۔ میں نے تو تمہیں بہن سمجھا تھا، لیکن تم نے مجھے بھائی نہیں سمجھا۔ بتاؤ کیوں کیا تم نے؟ اب زمین پر بیٹھا اس کے پاس اس کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ میرے ماں باپ کا یقین اٹھ گیا مجھ پر، میری محبت مجھ سے جدا کر دی تم نے، میرے بھائی کو میرے خلاف کر دیا۔ تم نے ایسی کون سی آگ تھی جو تم مجھ سے بجھانا چاہ رہی تھی؟ سب لوگوں نے مجھ پر بہت مان کیا تھا، ٹوٹ گیا پل میں۔ جو کہ میں نہیں توڑا، تم نے توڑا ہے۔ پلیز، میں سب کو بتا دوں گی کہ سچ کیا ہے، کہ وہ مجھے منال آپی نے اس رات آپ کے کمرے میں۔ اپنی بکواس بند کرو، یہ نہ ہو کہ زمین میں ہی گاڑ دوں۔ واہیات عورت! خبردار، جو تم نے منال کے بارے میں کچھ کہا، اپنے گناہ اس بیچاری پہ نہ تھوپو۔ تھو ہے تم پر، اپنی بہن کی خوشیاں چھین لی تم نے۔ میں نے تو پھر اشنال کی تو مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، وہ والی حالت تھی۔ پلیز، آپ میرے لیے یہ الفاظ استعمال نہ کریں۔ میں تو آپ کی لاڈلی تھی نا! آپ میرے لیے میرے سامنے اتنی آبس ورڈنگ یوز کر رہے ہیں۔ وہ اتنے معصوم لہجے میں بات کر رہی تھی کہ ایک پل کو تو روشنال بخت بھی ٹھٹک گیا تھا، لیکن اس کے آگے اس کے الفاظ آئے تھے جس کی وجہ سے وہ جل کر رہ گیا تھا۔ تمہارے چہرے پر معصومیت کا جو ماسک ہے نا، کل تمہاری گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے اتر گیا۔ میں آپ کے سامنے کل گھر والوں کو بولوں گی کہ آپ بے قصور ہیں۔ میں سب ٹھیک کر دوں گی، پھر تو آپ مجھے غلط نہیں کہیں گے نا، اور گالیاں بھی نہیں دیں گے؟ وہ بڑی آس سے پوچھ رہی تھی۔
क्या ठीक करोगी? मेरे माँ बाप का भरोसा तो तुमने तोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मिनाल मुझसे दूर हो गई। तुम्हें तो पता था ना कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, फिर क्यों ये फ़रेब? तुम्हारे ऐसा करने से कुछ नहीं ठीक होगा। ना मेरी खोई हुई इज्जत वापस आएगी, ना मुझे मिनाल मिल पाएगी। तुम्हारी वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से मैंने इसे खो दिया। मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा ज़हर घोलूँगा कि तुम जी सकोगी और ना मर सकोगी। मौत मांगोगी तो मौत नहीं मिलेगी। वो ज़िंदा तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूँगा। ये कहते हुए वो उसके करीब करीब हो गया था। उसका दुपट्टा उसके वजूद से अलहदा कर गया था। वो ठंडी ज़मीन पर बैठी पीछे को सिरकने लगी। इतनी बच्ची नहीं थी कि उसकी निगाहों को समझ ना पाती। औरत अपने ऊपर पड़ी हर निगाह समझ लेती है, लेकिन आज उसकी निगाहों से अपनी इज्जत नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कुछ नहीं किया है। आज तुम्हारी वजह से सबकी नज़रों में मेरा मजाक बन रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम कह रही हो मैंने कुछ नहीं किया। बहुत शौक था तुम्हें मुझसे शादी का ना। तुमने काठ का उल्लू समझ लिया। सब ने मुझे तुम्हारा शौहर बनाया, तो मैं क्यों इस रिश्ते से दूर रहूं? आज तुम्हें तुम्हारा शौहर बनकर दिखाऊंगा। इसकी बात सुनकर इसका मासूम सा दिल बंद होने लगा। प्लीज़ नहीं, नहीं, जब मैंने सबकी जली बुनी सुनी है तो तुम्हें क्यों ना इस दर्द से गुजारूं? ना, नहीं, आप तो मेरे सुपरमैन हैं ना, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो नाकाबिले यकीन हालत अपनी आवाज़ की कपकपाहट पाकर बोली, मैं तुम्हें ऐसा करके दिखाऊंगा। आज अशनाल का यकीन टूटने की दहलीज पर था, और वो अपने और इसके दरमियान ज़रा सा फासला भी मिटा गया, जबकि अशनाल वक्त का आज मान टूटने पर आया हुआ था। वो जिस शख्स की आंखों में इज्जत, मान, अकीदत होती थी, आज नफ़रत, गुस्सा और ज़िद थी। आज वो इसकी सांसें छीनने पे आया हुआ था। रात का 1 बज रहा था। सब सुकून से बिस्तरों पर सो रहे थे, लेकिन वो अपना मान टूटते हुए देख रही थी। प्लीज़ नहीं, नहीं, मैं तो आपकी ऐशू हूँ ना। सब क्या सोचेंगे? प्लीज़ चलें, चले जाएं यहाँ से। मैं मर जाऊँगी। इशू नहीं, तुम मेरी नाम नेहाद बीवी हो, जो कि कल बड़े मज़े से मोहब्बत का इजहार कर रही थी। तुम ना मिले तो मैं मर जाऊँगी। ये तुम ही थी घटिया औरत जो कल इसी कमरे में मुझसे इजहार मोहब्बत कर रही थी। वो इसके अल्फाज दोहरा रहा था। जनाजा निकाल कर रख दिया था तुमने। जनाजा निकाल कर रख दिया है तुमने मेरी इज्जत का। और वो फिर से ज़रा फासले पर होकर उठने लगी। जब फिर वो उससे अपनी तरफ घसीटने लगा, खबरदार, यहाँ से तो जाना भी नहीं। जिन लोगों के सामने मेरा तमाशा बनाया है, इन सब के सामने तुम्हारा तमाशा बनेगा नहीं। प्लीज़। बिगड़ना वसल की रात का वो नहीं, नहीं की हर अदा। वो मायने खेजी से शेर पढ़ता उसे अपनी तरफ घसीट चुका था। रोशनाल वक्त ने पल में उसका बरसों का एतबार तोड़ दिया था। उसकी सिसकियाँ, मज़म्मतें कुछ काम ना आई थी। नफ़रत की आग में रोशनाल के सारे एहसासात मर चुके थे। वो इसे भी इस अजियत से गुजारना चाहता था जिस अजियत से वो खुद गुजरा था। आज अशनाल वक्त अपना सब कुछ हार गई थी। उसने जो कहा था वो करके दिखाया था। ना उसे जिंदों में छोड़ा, ना मुर्दों में। आज लोग जीत गए थे, मिनाल जीत गई थी, लेकिन अशनाल अपना सब कुछ हार गई, इज्जत तक। मिनाल को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक पल में क्या से क्या हो गया था। जो गढ़ा उसने अशनाल के लिए खोदा था, वो उसमें खुद जा गिरी थी। दरवाज़ा खोले, मैं कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोले। मिनाल इन सोचों में गुम थी जब हसनाल की आवाज़ आई। क्या है, क्यों मेरा जीना हराम कर रहे हो? वो दरवाज़ा खोलते दांत पीस कर बोली, मैं आपका शौहर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो भी शायद उसकी इज्जत ही कर रहा था। शौहर हो, मैंने गोद तो नहीं ना लिया। तो ले लेना, 4 साल बड़ी हैं। वो हाथ फैलाने वाले अंदाज में खोलता, उसे आंख विंक करता, ढिठाई से बोला, चुप, एकदम चुप, बदतमीज़ इंसान। मैं तो तुम्हें छोटा बच्चा समझती थी। आप अपनी आंखों का इलाज करवाएं सबसे पहले तो। मैं आपसे बड़ा ही लगता हूँ। दूसरा, अब मैं शौहर बन गया हूँ। अब का अब तो मुझे बच्चा समझने की गलती कभी मत कीजिएगा, वरना नताइज की ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। अभी वो अपनी चप्पल उतारती ही कि जिस दरवाजे से अंदर आया था उसी से निकलता, तब फिर से बंद कर गया। खोलो, बदतमीज़ इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने तो कहा था कि आप मुझे पकड़ें, अब ज़रा कस के पकड़ें, लेकिन आपकी अपनी गलती है।
वो इतनी शिद्दत से रो रही थी कि रात वाले मंजर उसकी निगाहों से हट ही नहीं रहा था। वो ज़मीन पर बैठी ये सोच रही थी, रोशनाल इस हद तक कैसे गिर सकता है। उठो, जल्दी से अपना हुलिया सही करो और नीचे आओ। कुछ देर खूनख्वार नज़रों से उसे देखता रहा, लेकिन उससे टस से मस ना होता देखकर वो झुंझलाया। अशनाल ने नज़रें उठाकर उसे देखा। इसको घूरता पाकर नज़रें झुका गई थी। ऐसे क्या घूर रही हो? उठो, जाओ, नहीं तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसकी धारती आवाज़ से गिरती पड़ती वो अपने टूटे वजूद को लेकर उठी और वॉशरूम में बंद हो गई। वो नीचे आई तो सबने उसे देखा। वो कंफ्यूज होकर नज़रें झुका गई। वो किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। चलो, रोशनाल ये कहकर सूटकेस लेकर जाने लगा। कहाँ? इसकी आवाज़ गले में अटकी थी। हम कहाँ जा रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ करो, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। हनीमून पर लेके जाना होगा ना तुम्हें। इतनी भोली क्यों बन रही हो? मेरी बेटी की खुशियों पर डाका डालकर उसके नसीब पे तो स्याही मल दी है। प्लीज़ अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप यकीन करें मेरा। वो गिड़गिड़ाने लगी थी। मैंने आप ही की खुशियों के लिए हमेशा दुआ की है। नहीं हो तुम मेरी बेटी। तुम्हारी माँ मर गई थी, मेरे लिए पैदा करके मर गई थी, और तुमने भी दिखा दिया कि तुम मेरी सौतेली हो। मैंने तुम्हें परवाह की और तुमने मुझे डस लिया। समीना बेगम संगदिली की हर हद पार कर गई थी। प्लीज़ अम्मी, मुझे, वो टूटे फूटे लहजे में कहती इनके हाथ पर अपना हाथ रख चुकी थी। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। उन्होंने उसे ज़ोर से धक्का दिया था, जो कि रोशनाल के कदमों में जा के गिरी थी। वो उठी। ताई अम्मी, आप तो मेरी बात का यकीन करें। वो अब तहमीना बेगम की तरफ गई थी। जाओ, वो तुम्हें शहर लेके जा रहा है। वो उसके आंसू पोंछ के गले लगाते हुए बोली थी। उसने आगा जान की तरफ देखा, जो कि निगाहें फेर चुके थे। वो शुरू से उससे नहीं बुलाते थे। अशनाल ने सबकी तरफ रो कर देखा, मगर किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मिनाल कहीं कुछ नहीं रही थी, लेकिन वो अपनी जगह शर्मिंदा हो गई थी। हसनाल सही कह रही है, ये इसका भी तो घर है ना। हसनाल ने उसकी तरफदारी की, लेकिन आगा जान की कड़ी नज़रों से खामोश हो गया। सबको खामोश देखकर उसको झटका लगा। क्या इसकी इज्जत इतनी आर्जा हो गई थी कि सब उसे निकाल रहे थे? वो सबकी तरफ देखकर रोने लगी थी। तुम इसे लेकर जा रहे हो या नहीं? समीना बेगम ने सख्त आवाज़ में रोशनाल को देखकर कहा था। ज़हूर, सामान गाड़ी में रखो। चलो, रोशनाल ने मुलाजिम को कहकर इसका हाथ पकड़कर जाने लगा। प्लीज़ मुझे ना लेकर जाएं, मुझे माफ़ कर दें सब। लेकिन रोशनाल कान बंद कर गया। मैंने नहीं जाना आपके साथ, आप गंदे हैं। वो इसका हाथ छुड़ाने लगी। रोशनाल ने दूसरा हाथ घुमाकर उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारा था और इसे घसीटा। कार में धक्का देकर डोर लॉक किया था और खुद दूसरी तरफ से आके बैठ गया। अब आप सब खुश हैं? अब आगे आपको चैन? ये इसके बाप का भी घर था। हसनाल बज़ाहिर ठंडे मिजाज का मालिक था, पर उसके आंसू देखकर चुप नहीं रह पाया था। वो सारे रास्ते रोती आई थी। रोशनाल ने उसे चुप नहीं करवाया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उसके रोने से। वो संजीदगी से ड्राइव करता रहा था। घंटे बाद वो फ्लैट में पहुँचे। वो उतरा तो अशनाल भी उसकी पैरवी में बाहर निकली। चाबी निकाल कर उसने फ्लैट का दरवाज़ा के अंदर दाखिल हुआ था। फ्लैट बिल्कुल न्यू और फैंसी सा था। सामान भी नया था, सोफ़ा, बेड वगैरह हर चीज़ थी। 4 कमरे, अमेरिकन तर्ज का किचन था और लॉन्च भी बहुत बड़ा था। ये फ्लैट उसने तकरीबन साल पहले ख़रीदा था, जब वो MBA करके पाकिस्तान आया था। रोशनाल ने फ़्लैट इसलिए ख़रीदा कि अगर कभी वो ऑफ़िस के लिए लेट हो जाता तो रात यहीं रुक जाता था, और ये फ़्लैट उसने कबीर साहब के कहने पर ख़रीदा था। वो घबरा गई फ़्लैट को देखकर। मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, ये सामान सेट कर देना, इसको हक्का बक्का देखते हुए बोला, जो फिर से रोने पर आई थी। मैं अकेली कैसे रहूँगी? मुझे डर लगता है। रोशनाल बचपन से जानता था कि वह अंधेरों से कितना डरती है, फिर भी वो उसे ये अज़ियत देना चाहता था जैसे और रहती हैं। अब रोई तो मैं लिहाज नहीं करूँगा, थप्पड़ लगा दूँगा। वो रात से उसको रोते हुए देख रहा था और फूट फूट के रोने लगी। बंद करो ये ड्रामा, जीना हराम करके रख दिया है तुमने मेरा। वो उसके रोने से झुंझला गया, मगर वो और बुलंद आवाज़ में रोने लगी। रोशनाल के गुस्से का गिराफ और बढ़ गया था। तुम्हारा रोना तो बंद ही नहीं हो रहा। ओह, अब समझ आई, तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे पास रहूं। वो उसे बाजू से पकड़ता करीब कर गया, जबकि अशनाल को अपना रोना भूल गया। वो खौफजदा सी होकर उसे देखने लगी। अपने आप को उसके बाजुओं से छुड़वाना चाहा। वो तड़प कर उसके हिसार से निकली थी। अब क्या हुआ? यही तो
तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारा होकर रहूं और किसी का काम ना करूं। इसकी घटिया बातें सुनकर इसका चेहरा अहानत से लाल हुआ था। आंसू फिर से निकल पड़े थे। मेरे वापस आने तक ये सामान समेत सेट होना चाहिए। वो कुछ पल उसे रोता हुआ देखता रहा। उसे हुक्म देता निकल रहा था। इसके जाने के बाद वो फिर से रोई। इसकी एक गलती, इसका आखिरी ख्याल रखने वाला शख्स भी उससे दूर हो गया था। वो पछता रही थी, काश वो मनाल की बातों में ना आती और ना इसका मुहाफिज इतना बदला हुआ होता। रोशनाल बख्त के रवैये ने तोड़ के रख दिया। वो मोमी गुड़िया उस मेहरबान कलेजा सह नहीं पा रही थी। वो सारा दिन फ्लैट साफ़ करती रही। फिर वो कुछ देर खौफज़दा रही थी, लेकिन फिर ये सोच कर अब इसने दिन तन्हाई ही गुजारना है। अब सूटकेस, जो कि काफ़ी भारी और बामुश्किल खींच कर लेकर गई थी, इसके कपड़े निकाल कर सेट किए थे। ये काम करने के बाद किचन का फ़र्श धोया, हर चीज़ को साफ़ किया। मग़रिब की अज़ान हुई तो वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और सूरह यासीन पढ़ने के बाद वहीं बेड पे सो गई। वो काफ़ी रात को घर आया। पूरा फ्लैट सही चमक रहा था। हर चीज़ तरतीब से और नफीस लग रही थी। उसने खाना किचन में रखा, रूम में गया जहाँ वो नमाज वाले स्टाइल में दुपट्टा लपेटे सो रही थी। कुछ पल तो वो उसके मासूम चेहरे को तकता रहा और उसके पास बैठा। इससे वो अभी झुकता ही कि उसकी आँख खुल गई। रोशनाल सीधा होकर बैठ गया, जबकि अशनाल थोड़ी सी खाइफ सी हुई थी। उठो, खाना लगाओ, मुझे भूख लगी हुई है। उसके सर तासुरात देखकर वो उठ खड़ा हुआ था। वो किचन में आई, खाना गर्म करके टेबल पे रखा। जब वो अपने सर पे हाथ फेरता टेबल पे जा बैठा था और खाने लगा। खाना खाकर नैपकिन से हाथ साफ करके उठ खड़ा हुआ। कैबिनेट के ऊपर सामान पड़ा हुआ है, निकाल कर कॉफ़ी बना कर लाओ मेरे लिए। और हाँ, कल मैं सामान लेकर आऊँगा, खाना वगैरह तुम खुद बनाओगी। अगला हुक्म सादिर करता चला गया, जबकि बेबसी के एहसास से अशनाल की आंखों से आंसू निकल गए थे। वो कभी तबीयत की ख़राबी की वजह से खाना नहीं खाती थी तो उसके रूम में ले आता था, उसे टैबलेट देता था। अब वो कल से भूखी थी, इसको परवाह नहीं थी। उसके लिए कॉफ़ी बना कर लाई। जो कंप्यूटर पे काम कर रहा था उसके आगे कॉफ़ी का कप रखा। खाना खाया, मसरूफ़ से अंदाज पर बग़ैर निगाहें उठाए उससे पूछा था। अशनाल तो खुश हो गई, उससे उसकी परवाह है। मुझे रिस्क की बेहुरमती पसंद नहीं और ना मेरे पास इतना हराम का पैसा है जो तुम ज़ाया करती रहो। अपने हिस्से का खाना खाओ, ये ना हो कल मैं डस्टबिन में देखूं। अगर डस्टबिन में पड़ा हुआ नज़र आया तो फिर अपना हशर देख लेना। अशनाल की सारी खुशफहमी और अनछू हुई थी। वो रूम से निकल गई, जबकि पीछे से रोशनाल कॉफ़ी का सिप भरते हुए अपने रवैये पे गौर करने लगा। इससे पता था वो कल से भूखी है। सुबह भी वो उसे जल्दी में ले आया था। दिन भर भी उसकी थकन का देखकर इसे डायरेक्ट खाने को नहीं कह सका था, क्योंकि इसकी अना ने गवारा नहीं किया था। मैं आई और जहर मार कर निवाले लेने लगी। थोड़ी सी बची हुई कॉफ़ी पीकर बर्तन धोकर लाइट ऑफ करके अंदर चली गई थी। वो अंदर आई तो देखा कि वो चेयर पे सर रखे सो रहा है। वो उसके शूज़ उतारने लगी। उसकी उंगलियों के लिम्स पर उसकी आँख खुली थी। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? वो अपने पाँव झटके से पीछे कर गया था। आपके शूज़ उतार, मैंने कहा था करने को। उसकी बात काटते ज़ोरदार सी धाड़ा था। अब इन ओछी हरकतों से तुम अपनी तरफ मुझे मुतवज्जो करोगी। वो फिर से रोने लगी। दफ़ा हो जाओ, सर में दर्द करके रख दिया है तुमने मेरा। वो सहम कर पीछे हुई। वो अपने आंसू पे काबू पाती रूम से निकलकर लाउंज में आई थी। वो इतना थका हुआ था कि शूज़ उतार कर सो गया था। रात के 2 बजे उसकी आंख खुली थी। करवट बदल कर देखा तो कहीं भी नहीं थी। इसको तशवीश हुई। सारे रूम चेक करने के बाद वो परेशान हो गया था, पर वो कहीं भी नहीं थी। वो सही मायनों में परेशान हुआ था, क्योंकि उसने हर जगह चेक कर लिया, वो कहीं भी नहीं थी। वॉशरूम में तक देख लिए, वो कहीं भी नहीं मिली थी। वो फ्लैट का दरवाज़ा देखने जाता कि इसे सोफ़े के पास ग्रीन आंचल नज़र आया। वो मुड़ता हुआ सोफ़ों के पास आया था तो वो सोफ़ों की पुश्तें टेक लगाए बैठे बैठे सो गई थी। सूजी मतरूम आंखें देखकर एक पल को वो शर्मिंदा हो गया, क्योंकि कल से उसने इसे जहनी अजियत में रखा हुआ था। सर्दी भी काफ़ी बढ़ गई थी। वो बारीक से दुपट्टे में कब से पड़ी हुई थी। सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी। ये सोचते ही वो सच में परेशान हुआ था। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो इसे उठाने के लिए, फिर कुछ सोच कर रुका। पागल,
मुंह में बड़बड़ा कर उसे झुक कर बाजुओं में उठाता रूम में ले आया था और बेड पर लिटाया। कंफर्टर भी ऊपर से उड़ाकर दूसरी साइड पर आके सो गया था। पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? समीना बेगम को मिनाल की बात सुनकर इतना गुस्सा कि वो सदमे से पागल हो गई थी। हाँ मामा, मैंने किया था। इस रात मैंने अशनाल को वो लेटर लिख कर दिया था। मैंने इससे कहा था वो रोशनाल को मेरा लेटर देकर आओ, और फूल भी तो मैंने दिए थे। वो तो मेरी मोहब्बत में इस रात रोशनाल के कमरे में गई थी। मिनाल, क्या किया तुमने? अपनी माइयों वाले दिन ये पागलपन कैसे कर दिया तुमने? इतना शानदार बंदा और इतनी जायदाद का वारिस अशनाल के नाम कैसे कर दिया तुमने? सच में तुम पागल हो गई हो। उनके मुंह से सदमे से बात ही निकल रही थी। हाँ मामा, मैंने किया है ये काम। आपकी खुद साख्ता नफ़रत की वजह से मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। आपने 5 साल की उम्र से मेरे दिमाग में फतूर भरना शुरू कर दिया था। आप बज़ाहिर तो सबके साथ इखलाक से पेश आती थी, लेकिन उन सब के लिए मैंने आपके दिल में नफ़रत उभरती देखी। मैंने देखी थी। आप सबका ख्याल तो रखती हैं। आप पापा के सामने अशनाल से मोहब्बत तो करती थी, इससे हंस के बात करती थी, इसका ख्याल रखती थी, लेकिन पापा की गैर मौजूदगी में इसके लिए जहर उगलते मैंने देखा। मम्मा, आप जिस काम के लिए मुझे मना करती थी, ये काम थोड़ी देर बाद आप खुद कर रही होती थी। मम्मा, आप एक बात याद रखिएगा, जो बुराई आप खुद में होती है ना, इस बुराई से बच्चों को मना मत करें, क्योंकि बच्चे वो नहीं करता जो आप कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आप करते हैं। मैंने आपसे ही तो नफ़रतें, अदावतें मुंह पर बदलना सीखा है। मिनाल अपनी माँ की तरबियत पल में उसके मुंह पे मार गई। मम्मा, आपने मुझे एक ऐसा खिलौना वाली बनाया जिसका रिमोट आपके हाथ में था। आप जब चाहती मुझे चलाती रहीं, जैसे चाहे इस्तेमाल करती रहीं। अगर अगर आप मुझे अशनाल से मोहब्बत का दर्स तो देती, तो मेरे दिल में इतना जहर नहीं होता। समीना बेगम इसकी बातें सुनकर साकित हो गई थी। मामा, मैं मज़ीद दिल में ये गिल्ट नहीं रख सकती कि मैं अपने जुर्म का एतराफ़ करूँगी आगा जान, ताई अम्मी और ताया जान के सामने। मिनाल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये मैं कह रही हूँ। वो थोड़ी देर पहले खामोश थी, अब फिर से वही कुछ कर रही थी। ये बेवकूफ़ी की तो मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना। अपने पाँव पर तो तुमने कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि आगा जान को अपनी पोती का प्यार जागेगा और वो तुम्हें और मुझे धक्के देकर निकाल देंगे। वो फिर से इसकी ब्रेन वॉशिंग कर रही थी। मगर मामा, अब ये सच नहीं छुपा सकती, मुझे ये गिल्ट जीने नहीं देता। वो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई थी। तो इस सच के बाद हसनाल तुम्हें अपने पास रखेगा? तलाक तुम्हारे मुंह पर मारकर राह लगा देगा। ये जो हमदर्दियाँ तुम्हें मिल रही हैं ना, वो तुम्हें इनसे तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि सब तुम्हारे साथ है, और तो और तुमसे निगाहें नहीं मिला पा रहे हैं कि रोशनाल ने तुम्हें 4 साल अपने नाम पे बिठा कर रखा और छोड़ दिया। इस बात का फ़ायदा उठाने के बजाय तुम्हारा सोग ही ख़त्म नहीं हो रहा, और इसे फिर से बदगुमान कर रही थी। एक बात जो सच थी कि जबकि मिनाल ताज्जुब से एक माँ को देखती रह गई, और यहाँ गलती मिनाल की नहीं थी, इसकी माँ की थी। बाज़ वालिदैन होते हैं जो गाली से मना कर रहे होते हैं और गाली मत देना, हालांकि थोड़ी देर बाद वो खुद गुस्से में गाली दे रहे होते हैं या ऑल फॉल मुंह से निकाल रहे होते हैं। याद रखिए, वो बच्चा भी उस वक्त वहीं होते हैं। वालिदैन का ही तो अक्स होते हैं बच्चे। बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं, ना कि जो आप कहते हैं। आप ख़ुद को भी नहीं पता कि आपके इस अमल से बच्चों के दिमाग भी मुतासर हो रहे होते हैं। वो सुबह 5 बजे उठी तो उसके पास सो रहा था। वो हैरान हुई, रात वो रोते रोते लाउंज में सो गई थी, फिर यहाँ कैसे? इसकी निगाह फिर से इस पर पड़ी, जो सोते हुए इसका सुपरमैन लग रहा था, मेहरबान सा, फरिश्ता सा। और रात को इसलिए रोई थी क्योंकि वो इसका तेज़ लहजा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो बचपन से उसके नरम लहजे की आदत थी, और वो एकदम से उसका सख्त लहजा बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। वो थोड़ी देर इसको देखती रही, फिर उठ बैठी, क्योंकि उसे नमाज़ पढ़नी थी। दुपट्टा जो कि उसके नीचे आधे से ज़्यादा दबा हुआ था, जिसका मुंह दूसरी तरफ था, वो निकालने लगी, मगर वो ना निकला, और दांतों को लबों से दबाए दुपट्टा निकालने की कोशिश में इसके करीब हुई थी। और वो बुरा किस्मत कि उसने करवट ली, इसका बाजू नीचे आ गया। वो तकरीबन 5 मिनट तो इंतज़ार करती रही, और फिर से करवट बदले और अपना बाजू निकाले, और इसके बहुत करीब था। वो बाजू निकालने की कोशिश में इस सर्दी में भी
इसको पसीना आ गया, पर वो नहीं जानती थी ये इसकी गुर्बत का असर है। वो अपने आप को कोसने लगी कि क्या ज़रूरत थी दुपट्टा निकालने की, अलमारी से दूसरा निकाल लेती। लेकिन अब क्या पछतावा, जब चिड़िया चुग गई खेत। वो वो झुक कर बैठे रहने से थक गई थी और थक हार कर वहीं उसके बाजू पर रखे रखे सो गई। कुछ देर बाद अशनाल को अपने बाजुओं पर बोझ सा महसूस हुआ तो अशनाल का सर इसके सीने पर आ गिरा था। इसकी आंखें जो पहले ही नींद खुली थी अब पूरी खुल गई। इसने अपने सीने पे देखा, गुलाबी रंगत पे घनी से अब पलकों से सजा खूबसूरत चेहरा, उसके लंबे से बाल उसके सीने पे बिखरे हुए थे। उसकी मुधम सांसों का जीरो बम इसे अपने सीने पे महसूस हुआ था। जवानी की सरहदों को छूता उसका नाजुक सरापा पल के लिए रोशनाल बख्श जैसे मजबूत आसाब के मालिक शख्स के होश उड़ा गया था। वो तो उसे अभी तक बच्ची ही समझता था। ए लड़की उठो, वो गुस्से से उसे झंझोड़ गया था। अशनाल की आंख खुली। वो पहले तो कितनी देर माहौल को पहचानने की कोशिश करती रही, खुद को उसके सीने पे देखकर पीछे होती जब वो उसके बाजू पकड़ गया था। क्या कर रही थी तुम इधर? वो कड़े तेवर लेकर पूछने लगा। वो मेरा दुपट्टा आपके नीचे आ गया था, वो घबरा कर बोल रही थी। इसने इसका दुपट्टा अपने नीचे से निकाल कर इसके मुंह पे मारा था। आइंदा मुझे तुम्हारे बाल खुले हुए नजर ना आए, समेट कर रखा करो। अगर अगर तुम ये समझती हो कि तुम मुझे इन अदाओं से दीवाना बना लोगी तो ये कोशिश भी मत करना बीबी। ना तो मैं हुस्न परस्त हूँ ना हवस परस्त। आइंदा मेरे करीब भी मत आना, और ना मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी सो कॉल्ड बीवी हो। इसके मुंह को दबोचता वो सख्ती से बोला था। और नमाज के बाद नाश्ता तुमने बनाना है। अशनाल वक्त इतनी बच्ची ना नहीं थी जो इसके अल्फाज के मतलब ना समझती। लफ्ज़ चाबुक की तरह होते हैं, रूह की को घायल कर देते हैं। इसके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। समझ तो उसे उस रात आ गई थी जिस रात उसने उसकी ज़ात के साथ खेला था। इससे इसके पास जाने की चाह थी भी नहीं। इसे अब हालात की समझ आ रही थी। वो संगदिल बनना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी। वक्त एक ऐसा जालिम पंछी था जिसने उसे सारे ख्वाब उड़ाकर उसे संगदिल बना दिया था। बस वो तो ऐसे वक्त का इंतज़ार में थी जब अशनाल बनना चाहती कि कोई इसके करीब कुर्ब की चाह भी करता तब वो उसके पास ना जाए। उसने सौतेली माँ की झिड़कियाँ बर्दाश्त की थी। वजाहत तो इसके सामने उससे सबके सामने प्यार से मिलती थी, लेकिन बाद में वो उसे डरा धमका कर ब्लैकमेल करके काम भी करवा लेती थी। लेकिन वक्त की तरह उसे समीना बेगम की ये बात अच्छी लगी थी। उन्होंने नफ़रत में ही सही उसे कुकिंग और बाकी घर के काम भी सिखा दिए थे। ज़िंदगी ज़िंदगी में वो बस उनके इस काम की मशहूर थी। वक्त ने तमाम पर्दे सबके चेहरे से असलियत हटा दी थी। चाय पकाते इसकी आंखों में यही सोचें गर्दिश कर रही थीं। हसनाल, हाथ छोड़ो मेरा। वो उसकी हरकतों से आजिज़ आ गई। हाँ, छुड़वा सकती हैं तो छुड़वा ले। वो भी अपनी अजली नटखट लहजे में बोला। वो कितनी देर खुद को इससे छुड़वाती रही लेकिन छुड़वा ना सकी। हसनाल हसनाल प्लीज़ छोड़ो, वो खाला या अम्मी आ जाएंगी। वो रोने वाली हो गई। नहीं आएंगी यार, इनको पता है इनका जवान मर्द बेटे की शादी हुई है। हो नहीं सकता कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में घुसे। वो लाउंज में बैठ कर ऐसी बातें कर रहा था जबकि उसे अपनी बैक पे चुभन महसूस हुई। जाने यार, इतने प्यार से न मारे। वो ये समझा था कि पीछे से मिनाल ने इसकी बैक पर हल्की सी उंगली चुभोई थी, जबकि मिनाल आगा जान को सर पे देखकर सर झुका गई थी और उससे, जाने यार, जब आप मुस्कुराती हैं तो मुझे ऐसा लगता है पूरा जहां मुस्कुरा रहा है। जान तो मैं तुम्हारी निकालता हूँ। आगा जान की बात सुनता पहले तो वो खिसियाया, फिर ढिठाई से मुस्कुराया था। आगा जान, मेरी शादी हुई है, कुछ तो लिहाज करें। वो उधर से खड़ा होता साथ साथ बोल रहा था, साथ ही टेबल से जूस का ग्लास उठाते हुए पीने लगा जो मिनाल थोड़ी देर पहले पी रही थी। आजकल के तो जोड़ों में शर्मो हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं। एक हमारा ज़माना था, औरतें मंगनी होने के बाद निगाहें उठा नहीं पाती थी, शादी के बाद भी पर्दा करती थी। वो अपनी शराफत के किस्से पढ़ रहे थे जब जूस पीते हसनाल को ज़ोरदार अच्छू लगा। वॉट?
شادی کے بعد کون پردہ کرتا ہے؟ وہ حیرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو کھول کر بولا، ہاں تو اور کیا، اللہ بخشے تمہاری مرحوم دادی کو میری چھوٹی چھوٹی باتوں سے سرخ لال ہو جاتی تھی اور اپنے ماضی کی یادوں میں کھوتے ہوئے بولے تھے، آغا جان ایک بات آپ سے پوچھوں، بتائیں گے نا؟ وہ بڑے راز سے ان کے قریب جھکتا ہوا بول رہا تھا، ہاں ہاں پوچھو برخوردار۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر بولے، آغا جان جو آپ دادو سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو بتائیں۔ وہ ان کے پاس بیٹھا آنکھیں پٹپٹاتا ہوا بولا تھا، جب دادا جان کی لاٹھی اس کے بازوؤں پہ پڑی تھی اور دادا جان کے تاثرات دیکھ کر وہ بھاگا تھا، جن کی آنکھیں بتا رہی تھیں اب اس کی خیر نہیں، وہ اٹھ کر ایسا بھاگا پیچھے مڑ کر نہ دیکھا تھا۔ کل کی طرح آج بھی اس نے خود کو مصروف رکھا، اس کا موبائل بھی اس کے پاس نہیں تھا کہ وہ کسی سے بات کر لیتی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس نے جلدی سے نماز پڑھی اور اپنے قدم کچن کی طرف بڑھائے۔ اس نے چاول نکالے، جلدی جلدی ہاتھ ہلانے لگی، روشنال نہ آ جائے۔ ابھی 5:45 کا ٹائم تھا، وہ رات 8 یا 9 بجے آتا تھا۔ پیاز ٹماٹر کاٹ کر لہسن پیس کر اس نے فریج سے گوشت نکالا اور بہت ہی فکر مندی سے پکانے لگی کہ کہیں کوئی چیز خراب نہ ہو اور اسے ڈانٹ نہ پڑے، کیونکہ وہ ذرا سی بات پہ غصہ ہو جاتا تھا۔ تقریباً پون گھنٹے بعد بریانی کو دم پہ لگا کر وہ رائتہ تیار کرنے لگی جب روشنال کچن میں انٹر ہوا۔ ایک ہاتھ میں کوٹ اور کچھ فائلیں وغیرہ تھیں اور دوسرے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا۔ اشنال نے سلام کیا اور سلام کا جواب دیتا روم میں چلا گیا۔ لہجہ لیا دیا سا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس لیا اور کمرے کی طرف بڑھی، ڈور ناک کر اندر آئی جو اپنے شوز اتار رہا تھا۔ یہ لے پانی۔ وہ پانی سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر جانے لگی۔ میں نے تم سے پانی مانگا تھا، بتاؤ۔ روشنال کے لہجے میں ہر روز کی طرح سختی تھی۔ جی نہیں، واپس آؤ اور یہ گلاس لے کر جاؤ، آئندہ اس طرح سے روم میں مت آنا، اور میں تمہاری ان حرکتوں سے خوش نہیں ہونے والا۔ ایک بات اور، اپنے تک محدود رہا کرو، آئندہ میری ذات میں دخل اندازی کی کوشش مت کرنا۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی امپورٹنس نہیں ہے، آئندہ 100 فٹ کی دوری پہ رہنا، سو بی کیئرفل۔ جی، وہ کہتی ہوئی اسی خاموشی سے آئی تھی، اسی خاموشی سے نکل گئی تھی۔ کچن میں آ کر اس نے پانی کا گلاس سنک میں گرایا، اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے تھے جو روشنال کی گئی تذلیل پر نکلے تھے۔ وہ اپنے دل کی ٹوٹی ہوئی کڑچیوں کو سمیٹنے لگی تھی، کیونکہ بات بات پر وہ اسے تذلیل کر دیتا تھا۔ دوسری طرف روشنال پرسکون ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی نفرت بھرے لہجے پر اشنال کا چھوٹا سا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کامنی سی لڑکی اس کے لہجے سے ٹوٹ گئی تھی۔ سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں، دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں۔ ابی علی۔ وہ کل کی طرح کھانا ٹیبل پہ لگا چکی تھی، لیکن اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ روشنال کو بلائے۔ وہ بار بار اس کے پاس جا کر اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اس نے گلاس ٹیبل پہ رکھے جب وہ آ کر ٹیبل پہ بیٹھا۔ وہ روشنال کی پلیٹ میں چاول ڈال کر رائتہ اس کے آگے رکھ کر اسے اپنا کھڑا رہنا آکورڈ فیل ہوا تو وہ کچن سے نکلنے لگی تھی۔ حد ہے تمہارے ڈراموں کی، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ اس کا بازو تھام کر ادھر پڑی چیئر پر بیٹھا دیا اور اس کے آگے چاول کی پلیٹ رکھتے بولا، اور پھر اپنے چاول نکال کر کھانے لگا۔ وہ بھی چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ کھاتے وقت ان کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ آج چائے بنا کر مجھے دینا، روم میں جا رہا ہوں چاول کھا کر، وہ یہ کہتا روم میں چلا گیا۔ پیچھے اشنال نے پہلے ٹیبل سے برتن سمیٹ کر پلیٹیں اور برتن دھو کر چائے چولہے پہ رکھی تھی جب وہ موبائل لینے آیا۔ یہ امی کا فون ہے، بات کرو۔ روشنال اس کی پھرتی دیکھ کر ایک پل کو سچ میں متاثر ہوا تھا، جو ہر چیز سمیٹ کر چائے بنا رہی تھی۔ وہ اسے فون دیتا دوبارہ کمرے میں چلا گیا۔ ہیلو، السلام علیکم، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ جی تائی امی ٹھیک ہوں، یہ کہتے اس کی آنکھیں چھلک گئی تھیں، لیکن اپنے لہجے پہ کنٹرول کر کے بولی تھی، کیونکہ دنیا میں بس اسے تائی جان کا پیار اسے ہر فریب سے پاک لگتا تھا۔ بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ انہوں نے اندیشوں میں گرتے ہوئے کہا۔ جی تائی امی میں بہت خوش ہوں، آپ سنائیں سب گھر میں کیسے ہیں؟ آغا جان، تایا ابو، چھوٹی امی، منال آپی اور حسنال سب ٹھیک ہیں؟ وہ ان کی بات بدلتے ہوئے بولی، کیونکہ اس کے دل میں بھی ایک گلہ تھا کہ وہ تو اسے غلط نہ سمجھتی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا اسے گھر سے نہ نکلنے دیتی۔ روشنال کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ ان کی فکر مندانہ آواز دوبارہ گونجی۔
جی وہ بہت اچھے ہیں، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ بامشکل اپنی آواز پہ لرزش پاتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ وہ ایک ماں کو اس کے بیٹے سے بدگمان نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پہلے بہت ڈر تھا کہ جس غصے کی وجہ سے وہ تمہیں لے کر گیا ہے، مجھے کچھ اور ہی ڈر تھا، لیکن میں جانتی ہوں اس کا دل بہت نرم ہے، وہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ اس کے دل سے بے خبر بول رہی تھی۔ پتہ ہے آج میں نے تمہارے ایڈمیشن کی بات کی تھی کہ وہ تمہارا ایڈمیشن کسی کالج میں کرا دے، وہ مان گیا ہے۔ تائی امی کی بات سنتے ہی اشنال کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ وہ پڑھنا چاہتی تھی اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ شکریہ تائی امی۔ فرتے جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا، جبکہ وہ جلدی سے چائے کپوں میں ڈالنے لگی، یہ سوچے بغیر کچھ دیر پہلے اس نے اس کی کتنی بے عزتی کی تھی۔ روشنال کا فون آیا تھا۔ رات کو سب کھانا کھا رہے تھے جب آغا جان نے سنجیدہ سی آواز میں کہا، جی میرے ساتھ بات ہوئی تھی اس کی۔ تہمینہ بیگم نے ان کی بات کا جواب دیا، تو اس کے حواس ٹھکانے لگانے ہیں یا ابھی ابھی اپنی ضد پر قائم ہے؟ انہیں اب اپنی بڑی بہو سے پوچھا۔ نہیں وہ نہیں آئے گا آغا جان، وہ کہہ رہا تھا جس جگہ میری عزت نہیں وہاں میں قدم نہیں رکھنا گوارا کرتا۔ تہمینہ بیگم نے ان کی بات واضح لفظوں میں آغا جان کو بتائی تھی۔ آغا جان وہ آپ کا ہی پوتا ہے، ضدی اور انا کا پکا، اندر سے گھٹ گھٹ کے مر جائے گا، لیکن آپ کے آگے جھکے گا نہیں۔ اب جواب کھانا کھاتے ہوئے حسنال نے دیا تھا، میں اب اس لڑکی کو اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گی۔ یہاں تو وہ یہاں وہ رہے گی یا میں، اگر وہ آئی تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ سمینہ بیگم نے زہر خندہ لہجے میں کہا، تم جاؤ گی تب تو جب میں اس لڑکی کو اس گھر میں قدم رکھنے دوں گا۔ وہ لڑکی اب اس گھر میں نہیں آ سکتی، ہر بار تم ہی قربانی کیوں دو؟ 25 سال پہلے اس لڑکی کی ماں نے مجھے میرے بیٹے سے دور کر دیا تھا، اب اس کی بیٹی بھی یہی کچھ کر رہی ہے، لیکن اب میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی چٹانوں جیسی آواز گونجی تھی۔ آغا جان وہ بھی تو آپ کی پوتی ہے، آپ کو بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ آپ کے بیٹے کی نشانی ہے؟ آپ کو اس سے ذرا بھی انسیت نہیں ہوئی؟ آپ نے اس کے سر پہ کبھی ہاتھ شفقت کا نہیں رکھا؟ یہ بحث سن کر صغیر صاحب خاموش نہیں رہے، اور جہاں تک بات ہے روشنال کی، وہ اشنال کو کبھی نہیں لے کر گئی۔ روشنال اپنے انتقام کے لیے اس سے لے کر گیا ہے، میں صرف آپ کی وجہ سے خاموش ہوں، نہیں تو وہ میرے بھائی کی نشانی ہے جس کو وہ مرتے وقت میرے حوالے کر گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے روشنال ایسی گھٹیا حرکت کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے سے 12 سال چھوٹی لڑکی کو ورغلائے، کیونکہ اس کی تربیت اس کی ماں نے کی ہے۔ اس رات میں نے زبردستی نکاح روشنال کا کروایا تھا، اور اشنال نے جو کیا وہ اتنی بڑی بات نہیں، بچوں سے اس عمر میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ چھوٹی تھی، مجھے اس بات کا علم تھا کہ روشنال سے زیادہ اشنال کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں نے یہ نکاح کروایا تھا۔ روشنال ابھی غلط فہمی کا شکار ہے، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ صغیر صاحب جب بولنے پر آئے تو سارے راز افشا کر گئے۔ اگر تم سمجھتے ہو میں تمہارے اس لیکچر سے جذباتی ہو کر اس کو پوتی سمجھ کر اسے گلے سے لگا لوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے، کیونکہ وہ ایک غیر عورت کی بیٹی ہے جس نے میری بھتیجی کی خوشیوں پہ آگ لگائی تھی۔ پر آغا جان بیٹی کی شناخت تو اس کے باپ سے ہوتی ہے، اولاد تو باپ سے پہچانی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی اس کا دفاع کرنا چاہا، بس ایک لفظ اور نہیں، وہ یہ کہتے غصے سے چلے گئے، جبکہ پیچھے افراد بھی آہستہ آہستہ اٹھنے لگے تھے۔ بیڈ کا بٹن ٹوٹ گیا، لگا دے پلیز۔ وہ سوئی ہوئی تھی جب حسنال اس کے پاس آ کر بولا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ اس کے 2-3 پکارنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ اٹھے نہ، وہ پھر سے بولا، پر اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم، وہ اونچی اونچی آواز میں گانے لگا۔ سوئی ہوئی مینار اس کی بے سری اور بھاری آواز سن کر اپنے کانوں کے آگے ہاتھ رکھ گئی۔ 2-3 دفعہ وہ ایسے ہی لیٹی رہی تھی، لیکن آخر تنگ آ کر 5 منٹ بعد اٹھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے سونے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ وہ خاموش سا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اب تمہاری آواز آئی تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، مجھے سونے دو۔ پھر لیٹ گئی۔ اگر تم مل جاؤ، اس کی اب کی بار آواز پہلے سے اونچی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ وہ اب نہیں جگائے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ تنگ آ کر وہ ٹانگیں بیڈ پر مارنے لگی۔ کیا ہے تمہیں؟ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جاؤ یہاں سے، اس کی طرف دیکھ کر وہ چیخی۔
एक शर्त पे जाऊँगा, अगर आप बटन लगा कर देंगी। वो भी ढीठ इब्ने ढीठ था। वो शर्ट 2 शर्ट मैं लगा देती हूँ। आखिर वो तंग आकर बोली। वो जल्दी से लगा कर सो जाए। ये रहे सुई धागा इसके हाथ पे रखकर खुद उसके आगे बैठ गया। डफर शर्ट दो मुझे, वो गुस्से से बोली थी। ना ना, आप ऐसे ही लगा दें, मैं लेट हो रहा हूँ। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से बोला था। मैं ऐसे नहीं लगा रही, अब खुद लगाओ। उससे दूर होती फिर लेट गई। खाला खाला, उसने एक बार ऊंची आवाज़ लगाई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी और फिर से उसके करीब होकर उसके हाथ से धागे लेकर बटन लगाने लगी। ये वाली धमकी कारामद साबित हुई थी। ये मत समझना कि मैं डर गई हूँ तुम्हारी खाला से, वो जैसे से जताना चाह रही थी। आपका शौहर हूँ मैं, लिहाजा मुझे हल्के में मत लीजिएगा। वो इसको तपाने की खातिर बोला था। शौहर बनकर क्या अच्छा काम किया तुमने। कहने को वो उससे 4 साल छोटा था, पर वो उसके सामने बैठी बच्ची लग रही थी। करना तो चाहता हूँ पर आप करने नहीं देती। वो अपनी मखसूस मुस्कुराहट लिए बोला। क्या करना चाहते हो और क्या मैं नहीं करने दे रही। वो तब कर बोली। हसनाल का डिम्पल उसे जहर से भी ज़्यादा बुरा लगा। रोमांस यार, अब करने ही नहीं देती। मैं बेचारा तो आपके नज़दीक नज़दीक होता रहता हूँ। और उसके बालों की लट पीछे करते हुए बोला। निहायत ही चीप और बेशरम इंसान हो तुम। मिनाल ने गुस्से से सुर्ख हुई और फिर ज़ोर से सुई उसके सीने में चुभो दी। वो सी करके रह गया और बटन लगाकर अपने नेल से धागा तोड़ दिया। मुझे लगा आप अपने मुंह से धागा तोड़ेंगी। वो ढिठाई से मुस्कराकर बेड से उतरा था, जबकि वो कोई शय ढूंढती रह गई कि उसे उठाकर दे मारे। लेकिन अफसोस, उसकी नज़र में ऐसी वैसी चीज़ें नज़र नहीं आई। अगर तुम मिल जाओ। उसने को 5 मिनट लेटे हुए हुआ था जब उसको अपने पास से फिर से ऐसी बेहंगम आवाज़ आई। उसने आंखें खोल कर देखा। हसनाल बेड द्रोज से कार की चाबी उठा रहा था। अब अगर तुम रूम में नज़र आए तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। वो फिर से उठकर उसे वार्न करते हुए उसी के अंदाज में बोली। टांगें पास आएंगी तो तोड़ेंगी ना। वो इसके वो उसके तपे हुए अंदाज देखता पहले आराम से कदम उठा गया और दरवाजे पर पहुंचते हुए शैतानी मुस्कुराहट से बाहर निकल गया। अशनाल को आए तकरीबन 20 दिन हो गए थे। अब वो कॉलेज जाने लगी थी। आज चूँकि हफ्ते की रात थी तो वो जल्दी घर आ गया था। अशनाल कब से बैठे एक अकाउंटिंग के क्वेश्चन में फंसी हुई थी, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था। वो दूसरे कमरे में बैठकर पढ़ा करती थी, सोती भी वहीं थी। इस दिन के बाद दोबारा उसके कमरे में नहीं सोई। वो कितनी देर और करती रही, लेकिन उसे हल नहीं हुआ। आखिर तंग आकर उसके रूम में का दरवाज़ा नॉक किया। इजाज़त मिलते ही वो अंदर आई तो वो आगे सिगरेट पी रहा था। अशनाल ने उसे ज़िंदगी में सिगरेट पीते नहीं देखा। हैरान रह गई। ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, समझा दें प्लीज़। वो आगे से कुछ नहीं बोला। प्लीज़ समझा दे। फिर भी इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। प्लीज़ मैम मारेंगी, मुझे क्वेश्चन करवा दें। वो उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। इस दफ़ा अशनाल को गुस्सा आया। उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से सिगरेट खींच ली। सिगरेट वापस करो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अशनाल बक। इसकी धाड़ती आवाज़ आई थी, जबकि वो अपना सिगरेट वाला हाथ पीछे बंद कर गई। रोशनाल ने उसके बाजुओं से पकड़कर अपने पास ज़ोर से गिराया और उसके हाथ से सिगरेट ली। उसने अपनी मुट्ठी आगे करके खोली थी, जिसकी बेदाग हथेली 2-3 जगह से जली हुई थी। वो भी उसके हाथ से लेता हुआ वही सिगरेट उठाकर अपने मुंह के पास कर गई थी। वहाँ से उसका होंठ भी जल गया। रोशनाल वक्त उसके इस अमल से साकित हो गया था। उसे आज पहले वाली अशनाल लगी, ज़िद्दी और अपनी हर बात मनवाने वाली, जबकि अशनाल की आंखों से तकलीफ से आंसू निकल रहे थे। ये क्या किया तुमने बेवकूफ़। उसका हाथ थाम गया, जो अब उसके कंधे के साथ निढाल सी हो गई थी। ये क्या कर दिया तुमने बेवकूफ़। वो उसकी तरफ देख कर कहने लगा, जो अब उसके साथ निढालती होने लगी थी। उसके हाथ पकड़ कर मुआयना करने लगा। जो सिगरेट
जो सिगरेट लगने से 2-3 जगह से जला हुआ था। वो बहादुर बनकर इससे सिगरेट तो छीन गई थी, लेकिन अब हाथ का दर्द उसकी चीखें निकाल रहा था। वो अपनी चीखें ज़ब्त करने में लगी हुई थी। निहायत ही बेवकूफ़ औरत हो तुम, अब रो क्यों रही हो? उसको रोता हुआ देखकर गुस्से से बोला, अगर आखिर चाहते क्या हैं आप मुझसे बता दें। इंसान हूँ, तकलीफ़ में रोऊँ भी नहीं मैं। ने तो माफ़ी भी मांगी, फिर भी इग्नोर कर रहे हैं मुझे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ज़्यादती आपके साथ हुई तो मेरे साथ भी आपसे बढ़कर हुई है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है। हर किसी का लहजा मुझे तकलीफ़ देता है। इस रात आपने मेरा इस्तेमाल इसके लहजे की बगावत देखकर रोशनाल बख्त का दिमाग घूम गया। उसने थप्पड़ रख कर अशनाल के चेहरे पर रसीद किया। उसके थप्पड़ से तो अशनाल के हवास झंझना उठे थे। वो सहम कर उसे देखने लगी, जिसकी लाल गुस्से भरी आंखें उसे अपने आप में गिरती हुई महसूस हो रही थी। दर्द क्या होता है जानती हो अशनाल बख्त? तुम्हारे एक गलत कदम ने मुझे तबाह करके रख दिया, मुझे पूरे ख़ानदान में बदनाम करके रख दिया, फिर माफ़ी मांग रही हो? मेरे अपने मुझे कह रहे हैं कि मैंने अपने से 12 साल छोटी लड़की को वरगलाया। वो मुझे ताने दे रहे हैं। मैं अब तक अजियत बर्दाश्त कर रहा हूँ। मुझे उनके अल्फाज जीने नहीं दे रहे। उन्होंने मुझे बद किरदार मर्द कहा। ये लफ्ज़ मेरी रूह को छलनी कर गया। आज तुम्हें पता चला ना अजियत क्या होती है। ये तो सिर्फ वो छोटे छोटे निशान हैं ना, जो मेरे दिल को लहूलुहान कर गए। इनका क्या वो बज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रहे? मेरे अपनों के लफ्ज़ों ने अंदर से ज़ख्मी कर दिया। इस रात मैं ख़राब नहीं था। मैंने मैं ख़राब नहीं था। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किया है, और जब सब ने तुम्हें मेरी बीवी बनाया है तो मैं क्यों इस हक़ से कट कर रहता? वरना मेरे अंदर ना कोई ख्वाहिश है ना कोई चाह, ख़ास कर तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और जो कुछ तुमने किया इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे अपना असल दिखा दिया, वरना मैं कब तक तुम्हें बच्ची समझता रहता। अब रोशनाल ने सिगरेट जलाकर इसकी गर्दन पर रख दिया, जिससे अशनाल की चीखें निकल गई थीं। ये निशानात अब तुम्हें नज़र आएंगे जब तुम आईना देखोगी। तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ पे तड़प उठूँगा, इसलिए तुमने ये हरकत की। लेकिन अशनाल बख्त, ये सोच लो, अब तुम्हें तकलीफ़ ही दे सकता हूँ, तुम्हारे ज़ख्मों पे मरहम नहीं रख सकता। लिहाजा अब तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। वो इसकी तरह खून आलूदा नज़रों से कर कह रहा था, मैं यकीन से कह सकती हूँ आप मुझसे नफ़रत कर ही नहीं सकते। न आज न कल। आपके दिल में ये बदगुमानी ज़रूर है, वो किसी दिन दूर हो जाएगी। आप मुझे तकलीफ़ में देख ही नहीं सकते। अजियत देना तो दूर की बात। वो अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त करती मुश्किल बोली थी। इसका पुरएतमाद लहजा, उसकी बातें रोशनाल के दिल पे जल्दी का काम कर गई थी। इसने अब के इसके मुंह पे अपना मजबूत हाथ जमा दिया कि वो मजम्मत न कर पाए। अब की बार लाइटर निकाला और सिगरेट जलाया। सिगरेट से थोड़ी आग भी निकल रही थी। इसकी गर्दन पर, फिर हाथ पर, फिर 2-3 बार, और फिर लगातार इसके कंधे पर रखा। वो हूँ हाँ पे रोती, अपना आप को बचाने के लिए चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन वो उसके पास बैठा टस से मस ना हुआ था। उसके सर से दुपट्टा कब का उतर गया था। उसकी आंखों से बेबसी से आंसू निकल रहे थे। जहाँ जहाँ सिगरेट लगता वहाँ से शर्ट भी थोड़ी थोड़ी जल गई थी। अब तुम्हें यकीन आया कि मैं तुमसे कितनी नफ़रत करता हूँ। ये मेरी नफ़रत की शुरुआत है अशनाल बीवी। इंतहा पे जब आया तो मुंह पे तेज़ाब डालूँगा। रोशनाल के दिल को जब तक तस्कीन नहीं पहुँची, वो तब तक सिगरेट लगाता रहा और फिर हाथ हटा दिया। उसकी ज़ोरदार चीख से कमरे में इर्तियाश सा हुआ था। रोशनाल उसे देखता रहा। वो कभी हाथों पे फूंके मारती, कभी गर्दन को पकड़कर हिचकियों से रोती कि किसी तरह से तकलीफ़ ख़त्म हो। बाल बिखर गए थे। दुपट्टा जो नमाजी शक्ल में था अब उसके पास पड़ा हुआ था, क्योंकि ख़ुद को छुड़वाने की कोशिश दुपट्टा नीचे गिरा था। गुलाबी रंगत रोने की वजह से और गुलाबी हो गई। आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे, शायद रात को देर से पड़ती थी। वो लब बीचती दर्द कंट्रोल कर रही थी। रोशनाल ने जब उसे तकलीफ़ में देखा, जो उसके पास बैठी हिचकियों से रो रही थी, तो उसने हाथ पकड़ना चाहा। वो डर कर पहले पीछे और फिर उठी और अंधाधुंध भागी। अब की बार ज़ोरदार ठोकर दरवाजे से लगी। वो वहीं बैठ गई। रोशनाल ने जब उसे देखा,
جو اب پاؤں تھامے ہوئی تھی، وہ اٹھا کے اسے دیکھے۔ اشنال نے جب اسے اٹھتے دیکھا تو بہت مشکل سے خود کو دروازے کے سہارے کھڑا کیا کہ وہ اب پھر سے اسے نہ مارے، اور وہ فٹ سے بھاگتی گرتی کمرے میں پہنچی۔ دروازہ بند کر لیا تھا۔ روشنال نے باہر دیکھا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ دروازے کے قریب فرش پر اس کا خون لگا تھا، جو شاید ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس کے پاؤں سے نکل رہا تھا۔ اسے خود پہ غصہ آیا کہ کیوں وہ اپنی ساری ایریٹیشن اس پر نکال گیا تھا۔ آ جاؤ کہ ایک دن حالات کی زد پر ہو جائے گا معلوم تجھے خدا کیا ہے۔ عبیہ علی۔